وعدہ کیا ہوا مسیح۔ آخذ بادشاہ نے نشان طلب کرنے سے انکار کیا، بیٹے کی بابت ہمیں بتاتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ فلپس نے کہا اے نتنیل، جس کا نبیوں نے، تورات نے، موسیٰ نے ذکر کیا ہے۔ مقدسہ مریم ایمان میں غریب نہیں ہوئی۔ جینیسس چیپٹر 3 اور ورس 15 کچھ یوں لکھا گیا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یسایہ 7:14، یہ یسایہ 7:14 میں کچھ یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانوئیل رکھے گی۔ اور اسی طرح ہم بائبل مقدس میں متی کی انجیل دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے چیپٹر 1 اور اس کی ورس جو ہے وہ 22، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام امانوئیل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کہ خداوند خدا نے آپ نشان بخشا۔ خداوند خدا نے جو ہے، جب آخذ بادشاہ نے نشان طلب کرنے سے انکار کیا تو خداوند خدا نے آپ نشان بخشا۔ خداوند خدا نے کہا کہ میں آپ نشان دوں گا اور میں اسے پورا کروں گا، اور خداوند خدا نے وہ نشان دیا، اور وہ نشان جو تھا وہ ہی وعدہ کیا ہوا مسیح کی نشانی تھی، کہ وعدہ کیا ہوا مسیح جو ہے وہ رہائی دے گا، وہ چھٹکارا دے گا، اس کے کندھے پر کیا ہوگی؟ سلطنت ہوگی، اور اس کا تخت جو ہے وہ عبدالآباد ہوگا۔ تو وہ جو مسیح ہوگا، وہ جو خدا کا بیٹا ہوگا، وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے جو خداوند خدا نے یسوع مسیح کی پیدائش ہی میں ہمیں سمجھا دی اور بتا دی۔ خداوند یسوع مسیح کا مرنا، خداوند یسوع مسیح کا دفن ہونا اور جی اٹھنا، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے جو حوالہ جات ہیں پرانے عہد نامہ میں، ہمیں وہاں پر یہ باتیں ملتی ہیں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہم خداوند یسوع مسیح کی بابت جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے اس کی پہلی آمد جو ہے، اس کی پیدائش کی جو آمد ہے، اس کی پہلی آمد پر ہی یہ باتیں ساری کی ساری پوری ہوتی ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ خداوند خدا کی ان باتوں کو دیکھ کر ہمیں کاملیت کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پیدائش پر جب ہم بات کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے آنے پر بات کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا جو ہے وہ جسم میں آنا، ہم جو ہے وہ اس کو روایتی طور پر دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اور گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنا، دیکھنا، اور ان باتوں پر ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ غور کرنا، تاکہ ہم بہہ کر دور نہ نکل جائیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اور بائبل مقدس یہ بھی کہتی ہے کہ جو باتیں تو نے مجھ سے سنی ہیں تو ان باتوں پر کیا کر؟ غور کر۔ کہ یوسف جب ان باتوں کو سوچ رہا تھا، ان باتوں پر غور کر رہا تھا، اسی طرح سے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جداؤن کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا۔ کلام آپ کے پاس ہے، کلام پر جب آپ سوچتے ہیں تو پھر خداوند خدا جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں، یعنی خداوند خدا وہ تب آپ کو کیا دیتے ہیں؟ نئی بات بتاتے ہیں۔ خداوند خدا آپ کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، آپ کو کاملیت کی طرف لے کر جاتے ہیں جب آپ کلام پر سوچتے ہیں۔ حبشی کھوجا جو ہے وہاں پر وہ سوچ رہا تھا، جیسے ہی وہ سوچ رہا تھا تو خداوند خدا نے کہا اے فلپس اس کے رتھ کے ساتھ ہو لے، اور جیسے ہی وہ اس کے رتھ کے ساتھ آیا تو خداوند خدا نے وہ میسج اس تک پہنچا دیا، اور جو وہ سوچ رہا تھا وہی کلام اس تک پہنچ گیا۔ آج ہم بھی جب جو سوچ رہے ہوتے ہیں تو خداوند خدا وہ کلام ہماری زندگی میں دے دیتے ہیں، اس کلام کو کھول دیتے ہیں۔ جب ہم کسی بات کا حل چاہتے ہیں تو پھر ہم اس پر سوچتے ہیں، تب جا کر رستے کھلتے ہیں۔ اسی طرح سے مقدسہ مریم نے کہا یہ کیسا سلام ہے، اور جب اس نے سوچا اور وہ سوچ رہی تھی تو
फरिश्ता ने अगली बात जो थी वो उसके सामने रख दी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा बाप बेटा रूल कुद्स की हम शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें जो है इस लायक किया कि हम दुनिया के नूर कहलाए, इस लायक किया कि हम जो हैं वो नमक हैं, हम मज़ा रखते हैं। ये इसी कारण हुआ, इसी बाबत हुआ कि खुदा ने यीशु मसीह हम तक पहुँचे और हमारी सुलह बाप से हुई और बाप ने अपने रूह में से हमें दिया। आज का टॉपिक हम देखते हैं। आज का टॉपिक ये है कि वादा किया गया मसीह, वादा किया हुआ मसीह। आप ये देखें कि जितने भी लोग थे वो वादा किया हुआ जो मसीह था, जो आने वाला था, जो नबियों ने पेशन गोइयाँ की थी, सब की नज़र उसकी तरफ लगी हुई थी। सब के सब उसके मुंतज़र थे कि वो कब आए और हमें रहाई दे, वो कब आए तो हमें जो है अबदी ज़िंदगी दे, वो कब आए अपना तख्त कायम करे और हम हमेशा हमेशा उसकी हजूरी में रहें। सब उसके मुंतज़र थे, सब उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि वो वादा किया हुआ था, उसकी बाबत वादा किया गया था। बाइबल कहती है कि बाप अपने बेटे की निस्बत कहता है, अपने बेटे की बाबत हमें बताता है जिसका उसने वादा किया था। जब हम इस बात को देखते हैं तो सब लोग उसके मुंतज़र थे। किसके मुंतज़र थे? जो छुड़ाने के लिए आ रहा था, जो बचाने के लिए आ रहा था, जिसके बारे में पेशन गोइयाँ हो चुकी थी, वादा किया हुआ। फिलिप्पुस ने कहा, ऐ नतनएल, जिसका नबियों ने, तौरात ने, मूसा ने जिक्र किया है, मसीह हमें मिल गया क्योंकि वो वादा किया हुआ था। और वो इस बात को जानते थे कि मसीह कंवारी से पैदा होगा। जब वो कंवारी से पैदा होगा तो फिर क्या होगा? वो खुदा का बेटा होगा, क्योंकि कंवारी से पैदा होने का मतलब एक ही है बाइबल मुकद्दस में, यानी कि रास्ती के साथ एक ही मतलब है। वो मतलब ये है कि खुदा की कुदरत से पैदा होना। वो इस बात को जानते थे, वो इस बात को समझते थे। तो भी जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आखज बादशाह ने निशान लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं निशान तलब नहीं करूँगा और खुदा को नहीं आजमाऊँगा। पर लिखा गया है, खुदावंद आप तुमको निशान बख्शेगा, कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा जिसका नाम अमानुएल रखेगी। आप ये देखें कि जिसके सब मुंतज़र थे उसकी बाबत जब वहाँ पर निशान देने वाला था खुदा, तो आखज ने उस निशान को लेने से इनकार कर दिया, उसने ईमान लाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो रियाकार था, वो बदकार था, उसने बदियां की। उसने यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी क्या किया? आग में चलवाया। उसने दूसरे देवताओं के लिए कुर्बानियां की, दूसरे देवताओं के लिए मज़बे बनाए। और आप ये देखें कि खुदा ने जो वादा किया था, खुदा ने उसे पूरा किया। खुदा ने ये वादा किया था, ऐ यशायाह जा और शार-याशूब को साथ लेता जा, आखज के पास जा और अपने बेटे को अपने साथ लेता जा, ताकि वो इस बात पर ईमान लाए कि मैं कौम बनी इसराइल के बकिया को बचाऊंगा। जो जैसे बलूत का और बुतम का टुंड जो है वो फिर से क्या होता है? शाख पैदा करता है, इसी तरह से मैं कौम बनी इसराइल के लिए शाख को लाऊंगा। जा उसे बता दे और अपने बेटे शार-याशूब को साथ लेते जाना, ताकि वो इस बात को समझ जाए, ये उसके लिए एक निशान ठहरेगा। लेकिन आखज ईमान ना लाया। उसने क्या किया? उसने असूर के बादशाह से मदद मांगी। फक्के बिन रमलिया और जो इसराइल का बादशाह है और बादशाह रजीन जो अरामी बादशाह है, ये दोनों चढ़ आए आखज पर और आखज घबरा गया। तब खुदा ने कहा, जा यशायाह आखज से कह ना घबरा। और बाइबल कहती है जैसे जंगल के दरख्त तूफान से हिल जाते हैं, आखज बादशाह उसका दिल हिल गया, वो डगमगा गया, जुम्बश खा गया वो। लेकिन खुदा ने कहा, अपने आप को संभाल, मजबूत हो, शार-याशूब को यशायाह अपने साथ ले जा, ताकि आखज जाने कि मैं इसराइल का बकिया
बचाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने यह करके दिखाया। हालांकि वो ईमान ना लाया, उसने रियाकारी की और उसने निशान तलब ना किया। इसका मतलब था वो ईमान ना लाया, क्योंकि उसकी निगाह जो थी वो किस तरफ थी? उसकी निगाह उन दो बादशाहों पर लगी हुई थी जिनके सामने वो डर चुका था। उसकी निगाह, अक्सर हम अपनी कमजोरियों पर निगाह लगाए रखते हैं और यीशु को फोकस नहीं कर पाते। अक्सर हम बीमारी पर निगाह लगाए रखते हैं, शाफी की तरफ नहीं देखते। अक्सर हम मुसीबत की तरफ देखते हैं और पालूस और सलास की तरह हम्द के गीत नहीं गाते, क्योंकि हम मुसीबत की तरफ देखते हैं, हम कैद की तरफ देख रहे होते हैं, हम खुदावंद खुदा की ओर, खुदावंद खुदा की तरफ नहीं देख रहे होते। तो वो किस तरफ देख रहा था? वो फक्के बिन रमलिया की तरफ देख रहा था, वो अरामी रजीन की तरफ देख रहा था कि वो जो है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो डर रहा था, वो कांप रहा था और उसने लग्जश खाई, उसने जुम्बश खाई। कैसे? जैसे तूफान से जंगल के दरख्त जुम्बश खाते हैं। और ये उसके लिए जो है वो बेइत्कादी और शक का बायस बना। वो बादशाह तो था, लेकिन उसने क्या किया? उसने यहाँ पर रियाकारी की। और रियाकारी क्या की? उसने ये रियाकारी की कि मैं खुदावंद खुदा से निशान तलब नहीं करूंगा, यानी मैं खुदावंद खुदा को नहीं आजमाऊंगा, क्योंकि ये कलाम में लिखा है। हालांकि ऐसा नहीं था। हर बात हर जगह पर फिट नहीं आती। हम हर बात को हर जगह पर फिट करना चाहते हैं, लोग आज भी ऐसा करते हैं, लेकिन वहां पर उसे खुदावंद खुदा से निशान तलब करना चाहिए था, क्योंकि खुदावंद खुदा ने कहा था। और जब मलाकी की किताब को देखते हैं 3:10 में, हमें पता चलता है कि खुदावंद खुदा ने कहा तुम मुझे आजमा कर तो देखो, तुम आजमा कर तो देखो। तो हमें किस बात में उसे आजमाना है और किस में नहीं आजमाना, हमें यह पता होना चाहिए। किस बात में हमें खुदावंद खुदा को देखना है और किस बात में हमें नहीं। हमें कभी शक से नहीं ये करना, बेइत्कादी से नहीं करना, बल्कि ईमान रखकर हमें खुदावंद खुदा को देखना है। उसे ईमान रखकर निशान तलब करना चाहिए था। हिजकिया ने भी निशान जो है वो खुदावंद खुदा ने जब कहा यशाया हिजकिया को क्या निशान ले, तो हिजकिया ने जो आखज का ही बेटा है उसने निशान को लिया और वो निशान उसकी ज़िंदगी में पूरा हुआ। उस निशान से उसे कुव्वत मिली। निशान आपको क्यों दिया जाता है? ताकि आप कुव्वत पाओ। जैसे ही निशान पूरा होता है, निशान जो है वो आपको दिखाई देता है, आप कुव्वत पाते हो और फिर आप फतह पाते। इसी तरह से हम जब मुकद्दसा मरियम को देखते हैं तो उसने क्या किया? वो भी इसी हालत में थी, इन्हीं हालातों में थी वो भी। तब कौम बनी इसराइल पर रूमी हुकूमत कर रहे थे, यहूदियों पर रूमी हुकूमत कर रहे थे। इन्हीं हालातों में थी वो भी, वो इसी कमजोरी में थी और वो गरीब घराने से थी। मुकद्दसा मरियम ईमान में गरीब नहीं हुई। और इसी तरह से बाप इब्राहिम को भी हम देखते हैं, उसने अपने बुढ़ापे की तरफ निगाह नहीं की, बल्कि उसने क्या किया? उसने खुदावंद खुदा पर निगाह की। उसने ईमान में मजबूत होकर ईमान में बूढ़ा नहीं हुआ। वो जिस तरह से हम इस जिक्रिया को देखते हैं, और जिक्रिया जो है वो बुढ़ापे के साथ ईमान में बूढ़ा हो गया। उसने शक किया खुदावंद खुदा के कलाम पर। मुकद्दसा मरियम ने ऐसा नहीं किया, बाप इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ईमान रखा। ईमान में वो जवान हुए। मुकद्दसा मरियम जो ईमान में अमीर बनी, वो गरीब थी। बाप इब्राहिम जो है वो ईमान में जो जवान बने, कुव्वत पाई। ईमान में कुव्वत पाकर उन्होंने जो है अतकाद रखा, कामिल इत्काद रखा और खुदावंद खुदा पर ईमान लाकर रास्तबाजों का बाप कहलाया। जो ईमान आखज नहीं ला पाया, क्योंकि आखज की नज़र जो थी वो वादा किए हुए मसीह पर नहीं थी। वादा किए हुए मसीह के मुंतजर जो थे, उन लोगों ने उसकी जो है वो कुदरत को देखा। मुकद्दसा मरियम वादा किए हुए मसीह के इंतज़ार में थी, इसलिए खुदावंद खुदा ने उसे ही चुन लिया। और यूसुफ जो थे वो उस वक्त ईमान लाए थे कि वो एक कंवारी से पैदा होगा, ये बाइबल में लिखा है, और वो ईमान लाया। उसने वादा किए हुए मसीह को कबूल किया।
इस कलाम को कबूल किया, आखिज ने ऐसा नहीं किया और रियाकार बना। खुदावंद खुदा ने अपने वर्ड को पूरा किया। खुदावंद खुदा ने इसराइल के बकिया को बचाया। वादा किया हुआ जो मसीह है, आज हम उस पर ईमान रखते हैं और हम जानते हैं, और वादा किया हुआ जो मसीह है उसने अपने आप को बाइबल मुकद्दस में से, यानी जो कलाम हो चुका था, उससे साबित करके बताया कि मैं वादा किया हुआ मसीह हूँ, वो यीशु नासरी है। और आप ये देखें कि बाइबल में लिखा गया है कि वो औरत की नस्ल से होगा, औरत की नस्ल और शाम की नस्ल यानी इब्लीस की जो नस्ल है उसके दरमियान खुदावंद खुदा ने अदावत डाली। और फिर खुदावंद खुदा ने कहा जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। यहाँ पर वो एक की बात कर रहा है, ज्यादा की बात नहीं कर रहा। ऐसे ही इब्राहिम से कहा तेरी नस्ल से लोग बरकत पाएंगे, यानी मसीह से लोग बरकत पाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं दाऊद से भी यही वादा किया गया, मैं एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। ये वादे जो हैं सारे के सारे मसीह में पूरे हुए और उसने जिंदा होकर साबित किया कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। हमें कैसे पता चलता है कि वो मसीह मौजूद है, वो मसीह जो जिसका प्रॉमिस किया गया था, प्रॉमिस्ड मसाया है। हमें कैसे पता चलता है? जब वो जिंदा हुआ। आमीन। खुदावंद खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।